یہ ہے دنیا کا آخری کونا، اسرائیل سے ملاقات کی جگہ۔ اب تک جو بھی مختار کے ساتھ قید ہوا ہے اسے سزائے موت ہو چکی ہے۔ ان میں سے آخری شخص ایک اندھا تھا، ابن عفیف کے نام سے۔ اٹھو مختار، مہمان آیا ہے تمہارا۔ میں ہوں ابو اسحاق، تمہارا چچا زاد بھائی زائدہ۔ زائدہ، تم یہاں دنیا کے آخری کونے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جان بچانے آیا ہوں چچا زاد بھائی۔ خدا کے واسطے اب جھگڑا ختم کر دو، ایک جملہ کہہ دو کہ تم پشیمان ہو تاکہ اس قبر سے نجات پا سکو۔ خدا کی قسم اگر امیر سے معذرت کر لو اور اظہار افسوس کر لو تو تمہاری آزادی کا حکم لے لوں گا۔ مطلب بے وجہ اپنے مردگان کے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں آئے ہو؟ بہت بہت شکریہ کہ اپنے مردگان کو بھی یاد کر لیا، مگر جو خواہش تم مجھ سے کر رہے ہو اس کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ ابو اسحاق، خدا کی قسم توبہ نہیں کرو گے تو امیر تمہیں مار دے گا۔ خدا کی قسم میں اسے قتل کروں گا اور اس کی شکل پر لات ماروں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، غل و زنجیر میں بھی سرکشی دکھا رہے ہو ابو اسحاق۔ میں نے سنا تھا کہ باز علی کے چاہنے والوں کی طرح وہم و خیال میں مبتلا ہو گئے ہو، مجھے یقین نہیں آتا۔ خوش آمدید اسما، جو کچھ تم نے آج سنا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا، اس دن تک جس دن میں تمہیں خدا کا معجزہ دکھاؤں۔ تمہاری آنکھ کے زخم کے لیے مرہم لایا ہوں ابو اسحاق۔ کاش میرے دل کے زخم کے لیے مرہم لاتے۔ تمہاری زبان کے زخم سے خدا کی پناہ۔ اسما خواجہ گواہ ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں سے مرہم تمہارے لیے حاصل کیا ہے۔ بڑی زحمت کی چچا زاد بھائی، یہ زخم میری تنہائی کا ساتھی بن گیا ہے، ہم آپس میں دوست بن گئے ہیں، یہ میرا رازدار اور صبر کا باعث ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میرے دل کے درد کو کون سنے گا؟ جاؤ، مجھے تمہارے مرہم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل خوش تھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی کوئی خدمت کر سکوں گا۔ کیا مجھے یہ خوشی حاصل نہیں کرنے دو گے چچا زاد بھائی؟ تمہاری شکل کم کرو بغیر تو بکے ہوئے نوکروں۔ مار ڈالا مجھے، پاگل ہو گئے ہو دیوانے، میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ مکے میں میری بہن صفیہ کو خط لکھو، اسے کہو کہ اپنے شوہر سے یزید کو خط لکھوائے کہ میری رہائی طلب کرے۔ مار دوں گا تمہیں، چھوڑ دو مجھے، مار دوں گا تمہیں، نمک حرام خود فروش۔ ہو گئے ہو مختار، مار دوں گا تمہیں۔ چھوڑو۔ اس جیل کے تنگ و تاریخ قید خانے نے بھی تمہیں انسان نہیں بنایا۔ افسوس کے آقاؤں کی تاکید کی وجہ سے میں مجبور ہوں، ورنہ تمہاری اس گردن کو توڑ دیتا۔ حرام ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی جائے۔ میں بہت بڑا احمق تھا کہ میں نے چاہا کہ تمہارے ساتھ صلہ رحم کر لوں۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ زندہ مرو، اس قدر اس قبر میں رہو کہ سڑ جاؤ، مر جاؤ۔
قربان جاؤں آپ پر، امیر المومنین یزید کا خط ہے۔ حیرت انگیز بات نہیں ہے بھائی، جس کو ویران کر دینے والی ہوائیں نہیں ہلا سکتی تھیں، ایک چھوٹے سے پھوڑے نے اس کے گھٹنے ٹکا دیے۔ بالکل اس مچھر کی سی مثال ہے جو نمرود و شداد کے کان میں گھس بیٹھا اور اس کی جان لے لی۔ خدا نہ کرے۔ ہمارا جوان خلیفہ کس حال میں قاصد؟ خدا نہ خواستہ کسی نے اس کا سکون تو برباد نہیں کیا نا؟ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ خلیفہ کا سکون برقرار ہے۔ خدا کا لاکھوں بار شکر ہے، خدا کرے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم فدائیوں کے ساتھ جو بھی ہو سو ہو۔ بنو ریس، جی امیر۔ قاصد خلیفہ کو لے جائیے اور شاہانہ پذیرائی کیجیے، یقیناً وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ جی امیر۔ اف ہے اس قدر حماقت اور بچپنے پر۔ دمدمی مزاج اور یاش آدمی، اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اس نے۔ جب تک حسین زندہ تھا اس کو میری کرسی خراب کرنے کی پڑی ہوئی تھی کہ حسین کو مار دو، حسین کو مار دو۔ اب جب کہ حسین مارا گیا ہے تو افسوس کر رہا ہے۔ بے وقوف، جاہل، گھٹیا، بندر باز آدمی، یہ کیا کھیل مذاق ہے؟ ارے 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 ارے، جاہل کم عقل کہیں کا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا دھرا ہے وہ سب ایک سفید داڑھی والے بڈھے کے مشورے پر خراب کر دے۔ گدھے نے معاویہ کی ہوشیاری اور سمجھداری میں سے ایک ذرہ بھی ورثے میں نہیں پایا۔ ایسا کیا لکھ دیا جو آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ کیا لکھا ہے؟ اپنے قتل کا حکم اپنے ہی نالائق ہاتھوں سے مہر کر دیا ہے، جاؤ پڑھ لو۔ لکھا ہے فوراً مختار ثقفی کو زندان سے آزاد کر دو۔ پتہ ہے کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے کی گواہی کے مطابق مختار کا کوفے کے حادثات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہاں، خمار باز لڑکا، خلیفہ ثانی کا بیٹا مختار کا بہنوئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت میں ہے نہ کہ اس کے خلاف۔ یقیناً مختار نے اپنی بہن سے مدد مانگی ہے۔ اس کی بہن نے اپنے بیوی کے غلام شوہر سے یہ چاہا ہے کہ کچھ جھوٹی باتوں یا مٹھی بھر وعظ و نصیحت کے ساتھ اور کچھ الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ یزید کو خط لکھے اور مختار کی آزادی طلب کرے۔ تف ہے اس سیاست میں ہارے ہوئے باپ کی قبر پر۔ آپ کیوں اپنا منہ گندا کر رہے ہیں؟ آپ بھی خلیفہ کو خط لکھ کر اسے ماجرے کی حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ نہیں ہو سکتا ماقال، نہیں ہو سکتا۔ یزید حسین کے واقعے سے ڈر چکا ہے، اپنے آخری خطوط میں سارا کا سارا قصور ہمارے سر پر ڈال رہا ہے۔ ہماری خواہشات کا یا تو جواب نہیں دے رہا یا کسی نہ کسی بہانے سے انہیں ٹال رہا ہے۔ کتنی بار لکھ چکا ہوں کہ رے کی حکومت کا حکم پسر سات کے لیے بھیج دو۔ کہاں ہے؟ بھیجا اس نے؟ اس ماں کی یتیم نے کچھ کم خدمت کی ہے کربلا کے واقعے میں؟ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس قدر آج کل کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزید اس سے زیادہ خدمت کا لائق ہی نہیں ہے، اسے آزاد کر دیتا ہوں، مختار کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ خواب خوراک خلیفہ پر حرام کر دے۔
मैं खुश हूँ कि तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ मुख्तार। तुम आजाद हो गए मुख्तार, आजाद हो गए। उम्मीद है कि जिंदान तुम्हारे लिए इबरत अंगेज सबक बन गया होगा, ताकि तुम अपनी सरकश तबीयत को महार कर सको। इंसान एक अजीब मखलूक है, तबीयतन गुनाह का रुझान रखता है, बिल्कुल आदम और बशर की तरह। हम सबको इस बात की जरूरत है कि हमारी रस्सी को ढीला या कस दिया जाए, ताकि हमेशा हम अपनी मनचाही राह पर ना चल सकें। खलीफा की मुदाखलत बायस हुई कि तुम्हें ना मारो, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। अलबत्ता बिन हुरैस और अपने बहनों के लिए दुआ करो। एक ने मुझसे शफाअत की है और एक ने खलीफा से। लेकिन ये ख्याल रखना मुख्तार, मुझे कोई मौका मत देना। तुम आजाद हो मुख्तार, बिल्कुल आजाद। सिर्फ एक शर्त है, कूफा में मत रहना। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, ताकि कूफा से निकल जाओ। चौथे दिन अगर तुम कूफा में नजर आए, तुम्हारा खून तुम्हारे जिम्मे, दफा हो जाओ। जानते हैं मुख्तार की आजादी। इस हजदे की आजादी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, खुद खलीफा ने चाहा है। मुझे मलामत मत कीजिए। और ये रहा खलीफा का 2 टोक हुक्म, आप खुद ही पढ़ लीजिए। खलीफा ने ऐसी खता क्यों की है? इंसान खता का पुतला है शिमरो, खास तौर पर यजीद जैसा खलीफा जो कि शायर भी है। शायरों के मिजाज रंग बरंगे होते हैं, बिल्कुल मौसम बहार की तरह, बाज औकात गरजने बरसने वाले और कभी पुरसुकून। आजादी है मुख्तार, यानी हमारे कत्ल का हुक्म। हाँ, खुद यजीद भी मुख्तार के खतरे से बाहर नहीं है। तो फिर कुछ करना होगा। पिसर साद, तुमने खुद खलीफा के लहजे को देख लिया है। मेरे हाथ से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो सोचिए मत। मुख्तार को मार देना चाहिए। मार दो, मगर कूफा में नहीं। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दी है ताकि कूफा से निकल जाए। अगर वो कूफे में हुआ, मोहलत खत्म ना हुई और तुम लोगों ने उसे मार डाला, तो मुझे लामुहाला खलीफा की हुकूमतूली के जुर्म में तुम लोगों को किसास करना पड़ेगा। सब्र करो ताकि वो कूफा से निकल जाए। कूफा से बाहर मारा जाए तो मुझसे कोई वास्ता नहीं। ओहो, दरवाजा खटखटा रहे हो, छलांगे मार रहे हो। अब बस करो। अपने तबेले का दरवाजा भी क्या इसी तरह खटखटाते हो? वालेकुम अस्सलाम फुप्पी की जान। कैसा बेटा है? क्या अदब और नजाकत है? तुम्हारी माँ कहाँ है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। गलती से अपनी 2 इंच की जबान मत हिलाना, हाँ? खुदा ना खास्ता गूंगे हो जाओगे। तुम मेरी माँ और इस घर की जान क्यों नहीं छोड़ देती पुप्पी? वाह वाह वाह, खुदा की पनाह।
कितनी तेज जबान है। सांप का जहर है या बिच्छू का डंक? बेशरम लड़के, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी के बाल तक नहीं उगे तो ये हाल है, तो दाढ़ी मूछ निकलने के बाद क्या आफत बन जाओगे। मैं मुख्तार का बेटा हूँ पुप्पी, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, समझता है किसी सिकंदर का बेटा है। तुम और तुम्हारा बाप अजाब के फरिश्ते हो। खुदा की कसम जमाना बदल गया है, आधे गज का लोथड़ा क्या कद निकाल रहा है। ना कौम और कबीले की हुर्मत का ख्याल है, ना बड़े छोटे की तमीज। हाँ। क्या हुआ है बहन, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये लड़का मुझसे क्यों उलझ रहा है? ए बहन, ये भी मुझ बदनसीब की किस्मत का एक तमाशा है। इनमें एक बार जरूर मेरा खून जलाता है। गेंदे के फूल के पौधे से गुलाब की कली तो उगने से रही बहन, ऐसे निराले ही पैदा होते हैं। मुख्तार ने क्या गुल खिलाए होंगे जो उसका बेटा खिलाएगा। तुम्हारा अपना कसूर था बहन, जब से तुम मुख्तार की नजरों में कमतर हुई हो, इस बच्चे ने भी देखा देखी बाप की हरकतें शुरू कर दी हैं। ये हरकतें नहीं हैं, बाप के फिराक में बच्चे मसीह चिड़चिड़े हो गए हैं। अम्मा देखिए, बाबा की सूरत बन गई ना। जाओ माँ की जान, जाओ। साबित कहाँ हो? उम्र कैसा है जारिया, बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी दुआएं हैं। तुम खुद कैसी हो? कल की तरह, परसों की तरह। अब तक मैं मुख्तार के ना होने की आदत नहीं डाल सकी हूँ। दरवाजे की हर आवाज पे मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मेरे ख्वाब ज़दा हो गए। अपनी मौत के दहाने तक मुख्तार की राहें तकती रहूंगी। तुम कुछ भागदौड़ क्यों नहीं करती हो बहन? मुख्तार के ऐसे रुसूख वाले रिश्तेदार कम नहीं है। तुम हसद क्यों नहीं करती नारिया? जरा अपनी सौतन की तरफ देखो कि जो हर कसो नाकस के आगे हाथ जोड़ती फिर रही है कि मुख्तार के लिए कुछ कर सके। तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्तार को पता चलेगा तो उम्रा मजीद उसकी दिलो जान नजर आने लगेगी उसे। तुम बस बैठी रहो, जिगर जलाती रहो, ख्वाब देखती रहो। कल को मुख्तार आजाद हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत तुमसे है वो भी उम्रा को नसीब हो जाएगी। तुम दुआ करो मुख्तार आजाद हो जाए, उसकी सारी मोहब्बतें उम्रा को बख्श दूंगी। जब तक मुख्तार आजाद था उसे एक आधा इंसान देखती थी, वो इंसान जो आधा मेरा है और आधा उम्रा का है। जब से वो कैद हुआ है मैं समझ गई कि सिर्फ उसका साया 10 मर्दों से ज्यादा अहमियत रखता है। हाय, तुम कितनी सादा लो और दिल लगी वाली औरत हो। उम्रा मेरी सौतन होती तो उसका दिल सीख में पिरो के खा जाती। तुम्हारा दिल उसके साए पर खुश है, वो साया कि जिसकी ठंडक तुम्हें मिलती है और गर्मी बानो उम्रा को। गम मत खाओ, शायद इन्हीं दिनों तुम्हारा सरताज आजाद हो जाए। बाकी वल्लाह आलम। क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है जारिया? उमर ने कुछ बातें की जो मुझे खूब समझ में नहीं आई। गोया सफिया के शौहर ने यजीद को खत लिखा है कि जिसमें मुख्तार की आजादी की दरख्वास्त की है। ए बहन, यजीद शाम में है और मुख्तार कूफे में कैद है। सफिया के शौहर को इब्ने ज़ियाद के लिए खत लिखना चाहिए था, ना कि यजीद को। शायद लिख दिया हो, किसी को क्या पता। हमें इंतजार करना होगा कि उमर महल से आ जाए। उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। यकीनन कुछ ऐसी खबरें होंगी जिनसे उसे मुख्तार की आजादी की बू आई है। कुछ उम्मीद नहीं कि उमर आज महल से आए तो हम दोनों को वो खुशखबरी सुना दे।
तुम अपने शौहर को पालोगी और मैं बन जाऊंगी शहजादी मुल्के रह। 1 महीने से रे के सफर की तैयारी करके बैठे हैं। पता नहीं खलीफा क्यों आजकल। हाँ? क्या हुआ जारिया? हुकूमत रे सर हुसैन के बदले में बहुत छोटा सा मामला है। उमर साद को सुलेमान नबी की हुकूमत तलब करनी चाहिए थी। मुख्तार, जारिया, तुम और तुम्हारा शौहर मुल्क रे की बादशाहत का ख्वाब अपने साथ अपनी कब्र में लेकर जाओगे। ये फर्जंद रसूल का वादा है। तुम लोग मुल्क रे की गंदुम भी न खा सकोगे। जाओ जारिया, एक मलऊन सहीफा का खून मेरे घर में बहना शर्मिंदगी का बाइस न होता तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। तुम लोगों के ताफुन ने कूफा की हवा को जहरीला बना दिया है। मुख्तार, पूरा कूफा जानता है कि तुम्हारी तलवार बड़ी तेज धार वाली है। मुझे लगता था कि मुख्तार की तलवार जितनी भी तेज हो, कम से कम कौम कबीले की रग नहीं काटेगी। नारिया, इस इफ्रियत और इसके शौहर की तलवार ने खून खुदा बहाया है, खुदा की रग काटी है। हुसैन का खून खुदा का खून था जो करबला की तपती हुई रेत पर बहाया गया। आज आखिरी बार शैतान ने अपने नापाक कदमों और सांसों से मुख्तार अबू उबैद सकफी के घर को नजिस किया है। दफा हो जाओ। वहशी था जिंदान ने से मजीद वहशी बना दिया। खुदा इस जैसा वहशी भाई बयाबान के भेड़ियों को भी ना दे। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ए रोते हुए बूढ़े, घर आना मुबारक हो। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। रहा तरन्नुम और रक्सो तरफ का लश्कर। उसे परियों के परों पर बिठाओ ताकि पैर की तकलीफ भूल जाए। आओ, गाने बजाने के जादू से, अपनी नाज़ली आंखों के जादू से हाथ, गर्दन और कमर मटका के हमारे उदास अमीर का तमाम दर्द और गम खत्म कर दो। उनके जिस्म जान से अदाएं निछावर करो, ठुमका लगाओ और नाचो। अजब है शब सुहानी, कशिश जो तेरी छाई, मेरी नींद है उड़ाई। अजब है शब सुहानी। दफा हो जाओ कनीज़ादियों, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बदबू से नाक पे हाथ रखोगी। आज ये वक्त आ गया है मुझ पर। मेरे पास से बदबू आ रही है। मेरे पास से बदबू आ रही है शरीफजादियों। तुम्हारी
वजह से आई हैं। माफ कर दो मुझे। तुम हर रात मेरे लिए अज़ाब लेकर आते हो ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। मुझे मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। मेरे पास से बदबू आती है, मार दूंगा तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी। माकल मेरे भाई, माकल माकल मरना मत। माकल मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के मत जाना माकल। हीला कर मक्कार, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी तो ऐसी की तैसी, कम से कम अपने पाँव पर तो रहम करें। आज के बाद रात की तुरफ महफिल बंद, समझ में आया? मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ? इतने पागल क्यों हो गए? मेरे मुंह में खाक, कोई जिन देख लिया या उन लड़कियों के सर पे सींग थे? वही जो तुमने सुना है। आज के बाद कोई भी महफिल हमारे नाम पर या हमारे दर्द की तस्कीन के बहाने बरपा होगी तो उसके बानियों का सर काट दूंगा। इनकी तहकीर आमेज नजरें 100 गालियों से ज्यादा बदतर हैं। ये औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नचिस देख लिया हो। नहीं, आप यजीद के खैर संजीदा अहकामात पर भड़के हुए हो और खामोखा इस बिन माँ के माकल और तरफ के महफिल पर अपना बुखार निकाल रहे हो। मैं थक गया हूं ऐसे बेहुदा नौजवान की खिदमत कर करके। हुसैन के किस्से पर भी सोच सोच के पागल हो गया हूं। समझ नहीं पा रहा कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई। बस एक दफा उस बंदरबाज इंसान की वजह से जो मैं गड्ढे में गिरा हूं, ये मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। ये सर फिरा नौजवान हम पर सरदारी करने का हक नहीं रखता। बिल्कुल सारी बातों का इनकार कर दिया उसने। लाना। कम से कम आंख का जख्म ठीक होने तक रुक जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। मैं शहर बदर हो गया हूँ नारिया। शहर बदल का क्या मतलब बाबा जान? यानी शहर और घर बार को छोड़ देना। घर और शहर से निकाल देना शहर बदर कहलाता है बेटा। तुम्हें 3 दिन मोहलत दी है ना? क्या नहीं दी? हाँ, मोहलत दी है मगर अमान नहीं दी है। नारिया, मेरे दिल की आग अगर बुझ गई तो मुर्दों में शुमार होगा। औरतों के आंसू आग पर पानी का काम करते हैं। राजी नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम बेताब हो जाओ। चाहती हो मुख्तार को उसकी जंग में मदद करो, बुर्दबारी का मुजाहरा करो। साबित। जी बाबा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर के मर्द हो। अपने काम में तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मर्दाना वादा करो कि अपनी बहन और माँ के साथ रहमदिली दिखाओगे। इन लोगों की दिल आजारी नहीं करोगे। है तो मुश्किल काम बाबा, मगर क्योंकि आप कहते हैं तो जरूर। जब भी जारिया फूफी और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। नारिया, अगर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो तो मेरी बहन जारिया से दर्द दिल करो।
अपने आप पर रहम करो। जारिया की हम नशीनी तुम्हें अहले दोज़ख बना देगी। पीछे पलट जाओ। यही कहीं होगा, उतरो। साहिल को अच्छी तरह छानो, इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। एक दूसरे से जुदा मत होना कि तुम्हारा खून बह जाएगा। 3-3 के ग्रोह बना लो। अकेले मत घूमना कि मुख्तार एक खतरनाक शमशीर जन है। इन्हीं झाड़ियों के चप्पे चप्पे को छान मारो। तुम्हारा सवार कहाँ है दोस्त? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं समझ गया। अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया है, तुम्हें मदद के लिए भेजा है ना? मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था दोस्तों। अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया, हम मदद के लिए चलते हैं। तुम रास्ता दिखाओगे, चलो मेरे साथ। एक चाल थी अहमको, तुम में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि उसे रोक लेते? मेरे दिमाग में आया था, मगर तुम सरदार हो। मैंने देखा तुम चुप हो तो मैं भी नहीं बोला। चुप हो जाओ, उसके साथी लग रहे हैं। जल्दी करो, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको। वो आ गए।
कैद कर दो। इनके मुंह खुलवाने होंगे। अबू इसहाक, कहां हो अबू इसहाक? मैं हूं कियान। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूं कियान। अपने आप को जाहिर करो। खतरा टल गया है। चेलों को भगा दिया है हमने। खूब अच्छी तरह देखो कियान। शबाहत रुस्तम रखता हूं क्या मैं? तुम हमेशा मेरे ख्यालों के रुस्तम हो मुख्तार। रुस्तम की आंख जख्मी नहीं थी। पहलवान के जिस्म पर तो हर जख्म जीनत होता है। ये सूलिये के साथ तो और दिलचस्प हो गए हो। रो कियान, गिरिया करो। मजलूम तश्ते नैनवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अश्कों से नहीं। तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए? रास्ता भटक गया था अबू इसहाक। जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबल्द लोगों का क्या गुनाह? रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया। जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नेनवा पहुंचा हूं तो सरे बुरीदा नजरे पड़ता। शर्त इश्क जुनून है। हम रह गए क्योंकि मजनून न थे। ये नारा तुमने इन लोगों को सिखाया है? ये नारा तुम्हारी कल्बी आरजू है अबू इसहाक। मैं एक जरिए से बढ़कर कुछ नहीं।
या लिसारात अल हुसैन, बखुदा कसम जिंदान में मेरे दिन रात का जिक्र यही था कि जिंदा रहूं और खून हुसैन के इंतकाम के लिए क़याम करूं। वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ये खुदा का वादा है, बहुत जल्द सितमगर जान जाएंगे कि किस तरह वो ज़ेर ज़बर किए जाते हैं। खुदा का दुरूद हो तुम लोगों पर। खुश आमदीद, आजादी मुबारक हो अबू इसहाक, तुम्हारे कदम मुबारक हो। बहुत याद करते थे तुम्हें अबू इसहाक। इनके मुंह खुलवाए। जी, ये शिम्र इब्न ज़िलजोशन और उम्र साद के चेले हैं, अबू इसहाक को मारने के लिए भेजे गए हैं। आपकी पनाह में मेरे आका, आपकी पनाह में मुख्तार। मुझसे गलती हो गई अबू इसहाक, बेजा खता हो गई। मेरे बुर्दगान की रूह पर तुफ है, मैं बेगुनाह हूँ। 5-7 लोगों का रोजी खिलाने वाला हूँ। उमर साद ने 100 दीनार का वादा किया था और आधा हाथ में देकर भेजा। मुझे माफ कर दो मुख्तार, इस फकीर के बाप पर लानत जो कि सिर्फ 100 दीनार की खातिर धोखा खा जाता है और दिलेर तरीन मर्द के कत्ल पर भी आमादा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मुख्तार, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा मुरीद रहूंगा। उठो। सर आंखों पर अबू इसहाक। जाओ और उमर साद से कह दो कि मुख्तार जब तक तुझे न मारे नहीं मरेगा। सर आंखों पर। खुदा तुम्हारे बाजुओं को इतनी कुव्वत दे कि इन बेगैरतों से आवाम को निजात दिलाओ। दिन रात दुआ करूंगा ताकि दिली मुराद पूरी हो। खुशामद करना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो भी सर आंखों पर पहलवान। मेरा घोड़ा दे दो, अभी दफा हो जाता हूँ। घोड़ा तो जंगी गनीमत है। जाओ, खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारा सर तन पर बाकी है। पहलवान, खुदा की कसम घोड़ा मेरा नहीं है। ऐसे ही गया तो 1 साल तक बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। ये लो 50 दिनार गनीमत के तौर पर रख लो और घोड़ा मुझे दे दो। शक्ल है मक्कार की, चाहते हो या शक्ल बिगाड़ दूं मक्कार की। तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत। कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे? तो फिर क्या हुआ? घोड़े की अकल इन जानवरों से ज्यादा है। सींग वाले गधे देखते हैं, ये लो 20 मिसालें हैं हमारे पास। कितनी आजिजाना इल्तिमास की थी मैंने कि होशियार रहना। मुख्तार वो रिंद है जो तमाम रास्तों से वाकिफ है। सरकार, आपने खुद फरमाया था कि मुख्तार अकेला है। हमें उसके साथियों का अंदाजा नहीं था। मुख्तार हमारी मुट्ठी में था कि उसके साथी आ गए। अबे चुप कर, जाहिल अकल से पैदल। एक जरा बराबर भी अकल होती तो मुख्तार के घोड़े का रास्ता रोक लेते। उसके बाद देखते कि मुख्तार तन्हा तरीन अकेला है। अब जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी शक्लें ना देखूं मैं। लाश खाने वाले जानवर। कुछ बोलो शिमर, क्या करें? ऊंट पर छुपकर नहीं बैठा जा सकता। मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। वो अपने आप को अपने साथियों तक पहुंचा चुका है। 4 अंधे बूढ़े सिपाहियों के साथ उसे नहीं पकड़ा जा सकता। हमें एक लश्कर तैयार करके उससे पहले कि मुख्तार मजीद लश्कर जमाए उसे खत्म कर दें। कौन सा लश्कर शिमर? अपने मुर्दगान की कब्रों से सिपाही लेकर आए। शेख साहब किस लश्कर के साथ रय की तरफ जाना चाहते हैं? मुझसे चाल खेलोगे माँ के यतीम? मेरा मजाक उड़ाते हो खबीस कहीं के? करबला में मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों इस गड्ढे में गिरा हूँ। तुम ना होते तो खूने हुसैन से मेरा हाथ आलूदा ना होता। तुम हुकूमत रे के लालच में गड्ढे में गिरे हो। मेरा गिरबान किस बहाने पकड़ रहे हो? जब हुसैन से जंग करने का हुक्म तुम्हारे हाथ में दिया था मैंने, तो घोड़ा घुमाकर वापस क्यों नहीं आ गए? क्यों रह गए? मर्दों वाली बात करो। जब गुनाह किया है तो मुंह मत चुराओ। मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ दोनों एक जितने खूने हुसैन से आलूदा हैं, क्यों समझे? एक दूसरे की जान के दर पे हो? मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है।
जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया। यकीनन कहीं ना कहीं तुम लोगों की गलती थी। बजाय इसके कि अपनी गलती पर गौर करो, एक दूसरे को काट रहे हो। बानो, शेख खून हुसैन को हमने सर नहीं लेना चाहते। बकवास मत करो भेड़िए की औलाद। ये लीजिए, अब इसकी जबान भी गंदी हो गई है। उमर को मेरी खातिर माफ कर दो शिम्र। वो आजकल तल्ख जबान, बदमिजाज और बदअखलाक हो गया है। ये क्यों नहीं कहती कि दीवाना हो गया है? दीवाने न होते तो शिमर से न झगड़ते। तुम और शिमर एक प्रकार के दो हिस्से हो, साथ रहोगे तो काट सकोगे। सुना नहीं कि किस तरह रे के लफ्ज़ को जबान पे ला रहा है, मुझ पे इल्जाम डाल रहा है। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी जबान हटलाने नहीं लगी, तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए हैं। कूफे के लश्कर के सिपह सालार नहीं हो क्या? उस लश्कर के साथ मिलकर रह के फातेह नहीं बनना चाहते? लश्कर कूफा? हाँ, लश्कर कूफा अमीर कूफा के हुक्म के बगैर कहीं से हिलता नहीं है पगले। तुम क्या समझते हो कि मैं अब तक कूफे में क्यों हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब तक मुल्क रे की खाक को अर्श के मीनारों से मिला देता। उमर सही कह रहा है। अगर लश्कर कूफा का इख्तियार उमर के हाथ में होता तो हमें कैसा कम था। मुझे लगता है कि वादा हुकूमत रे एक चाल थी ताकि उमर को फरेब देकर हुसैन से लड़ने भेज दिया जाए। मैंने तो वादा वफा कर दिया, मगर खलीफा टाल मटोल कर रहा है और हुक्म नहीं भेज रहा। मैं मुल्क रे की गंदुम भी ना खा सकूंगा, नहीं खा सकूंगा। ये वादा हुसैन है। तुम्हें असर आशूर याद है शिमर? तुम्हें याद है हुसैन ने हमें क्या कहा था? तुम्हें और मुझे। मैं रे की गंदुम भी ना खा सकूंगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता शिमर। और अगर ऐसा हो भी, मैं तो रे की गंदुम खाने नहीं जा रहा। वहां की महंगी खुराक मेरे लिए काफी है। हाँ, जौ की रोटी खा लेंगे, जौ की रोटी पे गुजारा कर लेंगे, बस। बस नहीं करो उमर, खुद को संभालो। इस कदर परेशान हो तो तुम्हें मुख्तार से डरने की जरूरत नहीं है। ये दीवानगियां ही तुम्हें खत्म कर देंगी। खुद को संभालो। उमर, तुम इन खुराफात को नहीं मानते थे? खुदा के वास्ते पागल मत बनो। हुसैन की बातें नाजिल होने वाली वही नहीं है। उसने मौका महल देखा और अंधेरे में एक तीर चला दिया ताकि शायद हम लौट जाएं। हुसैन मौत से वाला होता तो अपने आप को बचा लेता। उठो, मुख्तार के लिए कोई फिक्र करें। जितना उसे मौका देंगे उतना ही उसे मारना मुश्किल होता जाएगा। कूफे का लश्कर हमारे इख्तियार में नहीं है तो ना हो। मुख्तार को मारने के लिए हमारे कबीलों के लोग ही हमारे लिए काफी हैं, बशर्ते कि हम जल्दी करें और वक्त जाया ना करें। शिमर ठीक कहता है उमर। तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया है तो दोबारा जाल बिछाओ, कुछ करो, उसे शिकार कर लो। अगर उसे खुदा की अमान में रिहा कर दोगे तो वो एक हैबतनाक दरिंदा बनकर हम सबकी जान ले लेगा। उस खलीफे की औलाद ने हुक्म दिया है, मुख्तार को मार डालेंगे। खलीफा हैरान रह जाएगा कि तुम लोगों की आंखों पे अबरू है।